Student Counseling Services of IIT BHU. At the outset, I would like to thank the organizers, especially Mr. Lakshman Yadav ji, for being opportunity to interact with you all and share my views regarding the mental health through Ayurveda and yoga. As all of you know, this program is being organized on the event of the 10th October, which was the World Mental Health Day. It is celebrated all over the world as a World Mental Health Day. It is a 1 week program which is being organized. So I think the purpose of the program is to bring about an awareness regarding the mental health among the general population and especially the students and the teaching faculty and the non-teaching staff of the IIT BHU and all those who are associated with this. So I thank the organizers because it is a very, very important issue, and it's a very important issue nowadays as a when we are running to a difficult times, suffering from COVID and this kind of situation. It has created not only physical problem but lot of mental issues are there. We are getting the patients who are suffering from fear of contracting the disease of COVID. Some of the patients, they are having the transmission to their nearby relatives and those. So they are very, very, very fearful. They are very, very apprehensive about the disease and these things. So these are the problems, and so many other problems among the healthcare professionals who are giving their healthcare services to the patients. They are also suffering from big strain of their work and all those. So there is a mental health problem of various kinds have been nowadays are more prevalent among the general population, among the patients who have been suffering from the COVID. Whether I will become all right or not, what will happen to me, what will happen to my other organs, and similarly other problems are also there regarding the healthcare professionals. There have been different kind of problems. Those patients who are very old age persons who are having the comorbidities like diabetes, like hypertension, like those things. So they are all different kind of things the persons are suffering from, different individuals, and everybody has a different kind of questions which need to be tackled. But first of all, we should have an awareness. We are as to best of our understanding what we have come to know through our interaction with the society and these things, that we are more curious and more emphasizing our physical health, and we are all curious about going to the gym and taking good nutritious food for all of us to make our body strong, to and to having good personality, good looking personality, and to have a physical health. We are looking for the physical health, but we are not so particular about when it comes to the mental health, because but actually the mental health is more important than the physical health, I think. Because with the physical health only the body suffers, but only one part of the body suffers. Somebody suffering from problem of the liver will be problematic. Somebody problem of the heart will be problematic. But when it comes to the problem regarding the mental, the entire body is suffering. So the mental health is extremely important, because the mental our state of mind, state of thought, and
these affect entire our body, whole of the body, and all the all these effect of the all the uh, body or organs itself, because uh, 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 because the mind itself, it controls the our thought, our respiration. Sorry, I am having little cold this time, but because of the request, I just appreciate it. So the this entire it affects the entire body, or cardiac function of the heart, function of the gastrointestinal tract, our digestion, our metabolism, everything affect on the how our mind work. But it has been seen that we give very less importance to the mind because the mind is very abstract, and when people take it very lightly, when it suffers from mental problems, when suffering from anxiety and depression, I have seen the relatives and the friends will say, what is happening? You are thinking in a negative way. You're thinking in absolutely wrong. If you correct your thinking, it will be all light. So this is the irony we have seen, that we give less importance. We take it very lightly, that you are thinking in a wrong way. But one thing we should be kept in our mind, that nobody wants to become nobody wants to become ill. Nobody thinks negatively by own self. It is because a series of thoughts comes, because of that patients suffer from the anxiety neurosis, the depression, the post-traumatic stress disorder, or these kind of many problems, fear, frustration. These are because of the conditions and circumstances which lead to these things. So this is the problem. So this is the very important, that the one thing very important, that the body and mind are interconnected with each other, which we fail to understand because of the development of the science. Is that when the science started developing in the 5 centuries back, in the 15th century, the base of the science started saying that the body and mind are different, and they two cannot meet each other. This was the assertion of René Descartes, was a scientist and philosopher, in the French philosopher, who developed this one, and the entire the science developed on this philosophy, that the body and mind are two different entities, and they cannot meet each other. They do not interact with each other. They are they are kept in two different circumstances. So this is the so if we put in different circumstances and different compartments, they cannot be kept. But while the reality was there, the science was started developing on this platform, that the body and mind are two different, and it took around 400 years, from 15th to 16th century, 17th, 18th, 19th, and the starting of the 20th century, that science understood that yes, whatever we think, whatever we think, and how we perceive the thing, and how we appreciate one thing, our beliefs and everything, are they are going to affect our body and bodily activities. So this was the became, while in our ancient classics. और फिर भी सर आपने रिक्वेस्ट हमारी एक्सेप्ट की स्टूडेंट काउंसिल सर्विसेज की तरफ से, तो स्टूडेंट काउंसिल सर्विसेज के बिहाफ पे मैं सर आपका वेलकम करता हूँ। और क्योंकि आपके गले में प्रॉब्लम है, तो हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे सर। एक किसी ने, मानव रॉय ने क्वेश्चन किया था सर कि योगा का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है मेंटल हेल्थ पे? योग, जो अगर वास्तव में देखा जाए, योग एक विधा है जो कि इसको कि बहुत से लोगों ने उसको ट्रांसलेट किया कि इंडियन साइकोलॉजी है। वो योग अपने आप में इंडियन साइकोलॉजी है, और योग के बहुत सारे एक्सपेक्ट होते हैं। योग में जो है बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, जैसे योग को अष्टांग योग हम लोग कहते हैं। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ऐसे 8 अंग अलग अलग होते हैं। लेकिन मोस्ट रूप से जो देखा जाए, अगर योग की जो है, अगर हम यम नियम का पालन करें, तो उससे जो है मेंटल हेल्थ मजबूत करने में मदद मिलती है। मेंटल हेल्थ हमेशा, जिसमें आदमी एडजस्टमेंट बेटर होता है, और उसमें डिसबैलेंस होने के चांसेस कम होते हैं यम नियम का पालन करें तो। लेकिन मेंटल हेल्थ अगर इम्बैलेंस हो, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है,
या तो कुछ रिलैक्सेशन करना हो, स्ट्रेस की स्थिति हो, उसमें जो है शवासन या मकर आसन ऐसे कुछ आसन बताए गए हैं जिससे कि मेंटल रिलैक्सेशन होता है, जिसको रिलैक्सेसिव प्रोसीजर बोलते हैं, रिलैक्सेशन होता है प्रोसीजर में। बाकी लेकिन ये मेंटल हेल्थ के लिए, डिजीज के लिए भी हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्राणायाम जो है, वो 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 प्राणायाम, विभिन्न प्रकार के प्राणायाम होते हैं, वो बहुत से बीमारियों में, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में और मेंटल हेल्थ के प्रमोशन के लिए भी दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। 2-3 चीजें होती हैं, एक तो प्रमोशन होता है, एक उसका क्यूरेटिव वैल्यू होता है, प्रमोटिव वैल्यू, प्रिवेंटिव वैल्यू। प्रिवेंशन ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, उसके लिए योग तो हमेशा ही बहुत ही उपयोगी है। और उससे जो है प्रमोशन मतलब हमारे हमारे जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल डिसऑर्डर ना हो, हमारे मेमोरीज बिल्कुल ठीक हो, हमारी इंटेलिजेंस और मेमोरी इम्प्रूव हो और सारी चीजें, तो वो जो प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ है। और प्रिवेंशन की कोई हमारी मेंटल हेल्थ बीमारियां ना हो, उसके लिए प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राणायाम, विभिन्न प्रकार के प्राणायाम जो बताए गए हैं, उसमें जो है, क्योंकि ये जो योग की बहुत महत्वपूर्ण बुक है जिसको कि हठ योग प्रदीपिका कहते हैं, उसमें लिखा है कि जो प्राण जो होता है वो इम्पोर्टेंट, जब सांस लेते हैं तो सांस के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए सांस बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है। तो प्राणायाम में चूंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती है, एक तरह के कॉमनली हम लोग ट्रांसलेट करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। तो प्राणायाम स्पेशली अगर करें हम लोग, नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसको बोलते हैं, या कुछ लोग कॉमनली अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं, वो और भ्रामरी प्राणायाम दोनों बहुत ही उपयोगी है मेंटल हेल्थ के लिए, और मेंटल डिजीज के लिए। अगर कुछ डिजीज है, स्पेशली एंजाइटी न्यूरोसिस है, या कोई और न्यूरोटिक प्रॉब्लम है, उसके लिए भी जो है ये दोनों प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है। ठीक है। और जी जी सर। जी जी सर। सर सर एक चीज जानना चाहते हैं कि ये तो योग की बात होगी, जो आज हमारा टॉपिक है सर, मेंटल हेल्थ थ्रू योगा एंड आयुर्वेदा। तो सर आयुर्वेदा का क्या रेलेवेंसी है, क्योंकि मैक्सिमम लोग मॉडर्न मेडिसिन के बारे में जानते हैं कि वही मॉडर्न मेडिसिन है। लोगों को कई बार बहुत सारा मिसकंसेप्शन रहता है कि आदत लग जाती है, नींद आती है, काइंड ऑफ। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं मॉडर्न मेडिसिन को लेकर के। तो सर आयुर्वेद में अगर जो कोई स्विच करना चाहता है, आना चाहता है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो सर किस तरीके से? जैसा बताया हमने कि पूरी लाइफ को हम लोग केवल बॉडी को नहीं मानते हैं, लाइफ को मानते हैं कि लाइफ इज ए प्रोसेस ऑफ द बॉडी, माइंड, आवर सेंस ऑर्गन्स एंड द आत्मा, सोल। हम लोग सोल के लेवल तक जाते हैं और बताते हैं कि पूरी तरह से हमारी लाइफ जो है, लाइफ इज ए, इट्स डेफिनेशन ऑफ लाइफ इज इंटायरली डिफरेंट। और जो हम कह रहे थे कि जो हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में हम लोग मन और शरीर को एक साथ मानते हैं। और बार बार ये कहा गया कि मन जो है, शरीर और मन को जो सत्व भी कहा गया है आयुर्वेद में, और कहा गया सत्वम। ये शास्त्रों में कहा गया है कि मन जो है तंत्रक होता है, नियामक होता है। मन का इतना इंपॉर्टेंट है, मन रेगुलेटर होता है, रेगुलेट करता है और उसकी बॉडी एक्टिविटीज को सारे रेगुलेट करता है। और शरीर के जितने तंत्र है, तंत्र मतलब जितने बॉडी ऑर्गन्स हैं, दे आर ऑल बीइंग रेगुलेटेड बाय द माइंड। माइंड ही कंट्रोल करता है उनको। इसलिए जो है मन को कंट्रोल करने के लिए, उसके पूरी तरह से पूरा एक शास्त्र है आयुर्वेद में, जिसको कि हम लोग मानस शास्त्र कहते हैं। मानस शास्त्र के अंतर्गत बहुत सी औषधियां इस तरह से, बहुत सी पंचकर्म के प्रोसीजर्स इस तरह के हैं जिससे कि हम लोग चिंता, उद्वेग, माइल्ड हाइपरटेंशन होता है और घबराहट, बेचैनी, इस तरह के जितने जो न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और साइकोटिक कंडीशंस के लिए अलग तरह के कुछ मेडिकेशंस हैं जिनको कि हम लोग मेध्य रसायन बोलते हैं। मेध्य मेध्य कहते हैं वो चीजें, जो ऐसी औषधियां, ऐसी दवाएं जिसको मेधा को बढ़ाएं। मेधा मतलब हमारे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को बढ़ाए, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और रिटेंशन एबिलिटी, जो हम मेमोरी हम कौन किस चीज को कितने दिन तक हम याद रख पाते हैं, वो रिटेंशन एबिलिटी है हमारी। फिर रिकलेक्शन एबिलिटी होती है। तीनों अलग अलग कंपोनेंट है मेडिकल के। रिकलेक्शन में किस चीज को कैसे रिकलेक्ट करते हैं, जो चीजें हमारे दिमाग में है, पहले से याद, मेमोरी में है, हाउ वी कैन रिकलेक्ट विद ईच अदर। तो तीनों चीजें जो है, तीनों कंपोनेंट को जो है उनको तैयार करते हैं। तो मेधा औषधियां होती हैं, जो कि तो आयुर्वेद में जो मेध औषधियां हैं, उसमें वो जो न केवल मेमोरी को, इंटेलिजेंस को उसको बढ़ाती हैं, प्लस दूसरी तरह से जो इम्बैलेंस हो गया क्रिएट मन में, जो कोई बीमारी की अवस्था होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन और किस अवस्था होती है, उसको बैलेंस क्रिएट करते हैं। आजकल बहुत से रिसर्चेज अवेलेबल है, उसमें कॉमन सब लोगों ने, कुछ लोग जानते होंगे, ब्राह्मी जो होता है, बैकोपा मोनोरियाई होता है। तो Brahmi is very important in that reference.
ब्राह्मी है, शंखपुष्पी कन्वोल्यूलस टूरिकॉलिस होता है, ठीक है। मंडूक पर्णी सेंटिला एसियाटिका, सिमिलरली अश्वगंधा बहुत से लोग नाम सुना होगा कुछ लोगों ने, इसका विथेनिया सोमनीफेरा, इट इज नोन एज इंडियन जिनसेन। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे इस पे रिसर्चेस हुए हैं। ऐसा नहीं, आप लोग जो सर्च करना चाहिए इंटरेस्टेड हो, दे कैन सर्च कि इंटरनेट पे बहुत सारे रिसर्चेस अवेलेबल है जो कि साइंटिफिकली प्रूव करते हैं कि these Ayurvedic herbs are really effective in the maintenance of the mental health and so there हमारे पास बहुत सी औषधियां हैं जो कि सिंगल हर्ब्स की हैं, और बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स हैं, बहुत सारे कंपाउंड प्रिपरेशंस होते हैं, हर्बल प्रिपरेशन, जैसे ब्राह्मी बटी होती है, मेधे बटी है, मेधा बटी, इस तरह के बहुत से कंपाउंड प्रिपरेशंस हैं जिनके द्वारा हम लोग मेंटल हेल्थ को देखते हैं, रोगियों का ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा पंचकर्म प्रोसीजर्स हैं जिनकी वजह से मन को शांति मिलती है, मन को ट्रांक्विलिटी मिलती है, जो उद्वेग है मन का और जो एंजाइटी होती है, दे ऑल आर रिलीव्ड with these procedures. So it has got a very broad concept and all is a healthy. All these mental health promoting drugs are there. They have got the promoting ability. They have also got the preventive ability. They have also got the curative ability. This is the basics of Ayurveda, because it works on the well-being. It's not works on the concept of illness, but rather whatever it's called acts on the concept of the wellness. जो वेल बींग होती है, वेलनेस के कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है ये चीजें। जैसे कि आजकल वेलनेस सेंटर्स बहुत सारे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2-3 साल पहले ये बताया कि बहुत सारे वेलनेस सेंटर खुलने चाहिए। वी हैव सो मेनी हॉस्पिटल, सब इलनेस की बात करते हैं, सब बीमारियों की बात करते हैं, लेकिन हम लोगों के पास ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारे मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ प्रमोट करने के लिए देयर शुड बी वेलनेस सेंटर। तो वेलनेस का कॉन्सेप्ट जो होती है, तो आयुर्वेद की औषधियां सब वेलनेस पर काम करती है। सो दे डोंट हैव गॉट द साइड इफेक्ट, दे वर्क वेरी slowly but very emphatically, and they are very effective, and we are getting so many patients from the student community itself. Apart from the common public, we get so many patients from the student community as well. So this is the रिक्वेस्ट आया नहीं कोई, रिक्वेस्ट आया नहीं कोई अभी आया नहीं कोई रिक्वेस्ट आया नहीं। हाँ, अच्छा, हाँ ठीक, आया नहीं रिक्वेस्ट। हाँ सॉरी सर, टेक्निकली कई बार फॉल्ट हो जाता है, और टेक्निकलिटी की अपनी लिमिटेशंस है, बीच बीच में कुछ कुछ इंटरप्शंस हो जा रहे हैं। सर एक चीज, हेलो सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल मैं सबको बता सुन पा दूं रहे जो हैं, सुन अभी पा रहे हैं। मेरे साथ लाइव जुड़े हैं हाँ हाँ लोग, आज हमारे हमारे साथ प्रोफेसर JS त्रिपाठी सर जुड़े हैं, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा के काया चिकित्सा डिपार्टमेंट के न्यूरो साइकेट्री डिवीजन से,
जो साइकोसोमेटिक मेडिसिन के इंचार्ज भी हैं सर। और सर बहुत मैं ये पूछना चाहूंगा कि वैसे तो बहुत सारी मॉडर्न साइकोथेरेपीज है सर, सीबीटी है, ईएमडीआर है, बहुत सारे आर्ट थेरेपीज आ गई है, बहुत सारी मॉडर्न थेरेपीज है। क्या सर हमारे आयुर्वेदा में भी कोई इस तरह का साइकोथेरेपी टाइप की थेरेपीज है जो हेल्प कर सकती है? क्योंकि मेडिसिन का जितना रोल रहता है काफी हद तक साइकोथेरेपी का भी रोल रहता है सर। तो मुझे हमें सर आप बताएं कि क्या कोई ऐसा थेरेपी है जो आयुर्वेद में भी एग्जिस्ट करती है और हेल्पफुल हो सकती है? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन लक्ष्मण जी आपका। हाँ क्योंकि आयुर्वेद की थेरेपी जो है, जब बताया था हमने, पूरे शास्त्र अलग थे और डिविजन है, तो जितना ही प्राचीन है उतना ही इतना ही मॉडर्न भी है इन अंडरस्टैंडिंग जैसे हमने बताया माइंड एंड बॉडी का दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, वो आयुर्वेद में पहले ही हजारों साल पहले बताया गया, जो कि अभी साइंस अभी समझ रहा है उसको। सिमिलरली जो है आयुर्वेद में इसके लिए जो साइकोथेरेपी आपने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, अगर पेशेंट है प्रॉब्लम है, तो आप साइकोथेरेपिस्ट हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप अच्छी तरह जानते होंगे कि साइकोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पेशेंट की दवा एग्जैक्टली से जो सर। हम लोग किसी का मन को शांत कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, लेकिन मन के जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो उसके रूट काज है, बिकॉज ऑफ कोई निगेटिव सोच रहा है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को और पर्सनल प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम को जब तक हम सॉल्व नहीं करें तब तक परमानेंटली बीमारी ठीक नहीं होगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि साइकोथेरेपी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आयुर्वेद में भी इसी तरह कल्पना की गई कि बहुत से तीन तरह की चिकित्सा बताई गई है। एक तो दैव पाशा चिकित्सा बताई गई है, एक युक्ति विपाशा जो हमने अभी चर्चा की, मेध रसायन और पंचकर्म, पंचकर्म की चिकित्सा और शिरोधारा चिकित्सा, शिरोधारा को युक्ति पाशा कहते हैं। और तीसरी चिकित्सा जो है वो साइकोथेरेपी है, जिसको सत्ववजय चिकित्सा बोलते हैं आयुर्वेद, सत्ववजय। उसका अलग ही नाम ही है। सत्व मीन्स स्टैंड फॉर द माइंड, एंड अवजय मीन्स स्टैंड फॉर द दिस विनिंग ओवर द माइंड। So we can controlling over the mind, the winning, nobody can win the mind. The mind is so चंचल है, इतना है कि भगवान कृष्ण ने कहा था उसमें कि अर्जुन ने कहा था कि हम चंचल भी मन कृष्ण प्रमा भी बलवदृढ़, कि चंचल इतना मन इतना चंचल है कि उसको वायु की तरह कंट्रोल करना, हवा को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये मन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंट्रोल करने के लिए सत्ववजय चिकित्सा बताई गई। सत्व का कैसे करेंगे, वो साइकोथेरेपी ही है, जिसको कि मन को कंट्रोल करने के लिए जो कहा गया, मन को अपने अहित अर्थों से मन को लेके हित अर्थों में लगाना। ऐसे हित अर्थों में मन बिना मतलब किसी बात को चिंता करता रहता है, सोचता रहता है, जो सोचने की बात नहीं है। जो बहुत एक्स्ट्रा सोचना चाहिए उसको नहीं सोचता है। जैसे स्टूडेंट में पढ़ने के समय होता है, उस समय दिमाग दूसरे दूसरे कार्य में लग जाता है। पढ़ने के जिसमें फोकस होता है, एग्जाम है, स्टूडेंट परेशान रहता है, हमारा दिमाग हमारे एग्जाम में क्यों नहीं फोकस करते हैं, अपने स्टडी में क्यों नहीं फोकस करता है माइंड, माइंड इधर उधर घूमता रहता है, वेवरिंग ऑफ द माइंड। उनको कंट्रोल करने के लिए जो है अहितेभ्यो अर्तेभ्यो मनोनिग्रह का, अहित अर्थों से मन का निग्रह करना, वो सत्ववजय कहते हैं। तो सत्ववजय एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, वही आयुर्वेद में भी करते हैं। आयुर्वेद में भी उसके लिए प्रोसीजर्स है, जिसको कि ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि के द्वारा, समाधि में योगिक प्रोसीजर्स के द्वारा आपको मन को कंट्रोल करते हैं। तो मन को कंट्रोल कर ले तो हम सब कुछ कर सकते हैं, मन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मन को कंट्रोल कर ले तो हम बहुत बड़े योगी, बहुत बड़े डिजायर, बहुत बड़े किसी स्टारवर्ड बन सकते हैं, बहुत बड़े एक्सपर्ट बन सकते हैं। लेकिन मन को अगर नहीं कंट्रोल किया हमने तो बहुत बड़े क्रिमिनल, क्राइम और माफिया कुछ भी बन सकते हैं। तो माइंड इज गॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो बॉडी का इंपॉर्टेंट केवल फिजिकल रोल है, लेकिन माइंड हैज गॉट की सोसाइटी किस तरह से होगी, मन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके लिए आयुर्वेद ने बहुत सी विधियां बताई हैं, जिनको कि सत्ववजय चिकित्सा बोलते हैं, साइकोथेरेपी। उसके बहुत से प्रोसीजर्स हैं, जैसे बताया ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि, इस तरह के प्रोसीजर्स हैं जिनको अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है, माइंड को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ठीक है? तो वो इंपॉर्टेंट होता है जी सर। हमें। ठीक है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि हमारे आयुर्वेद में भी थेरेपी है जिसका नाम है सत्ववजय चिकित्सा, जिसके 5 कंपोनेंट है, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। ये पांचों चीजों सर ने इतने अच्छे तरीके से बताया, तो मुझे लगता है कि लोगों को ये जानना चाहिए। सर एक चीज, एक और सवाल है। मैं सर आपके अंडर में रिसर्च भी किया हूँ, और मैं चाहूंगा कि सर वो हमारी जो एक लैब है जो साइकोथेरेपी की, जो सबसे मुझे लगता है एडवांस लैब है अभी इधर यूपी ईस्ट की हमारे पास, सर उसके बारे में कुछ बताएं कि कौन कौन से मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो इलनेस है वो ट्रीट होते हैं हमारे यहाँ पे, और कितने तरीके की वहाँ पे थेरेपीज अवेलेबल है सर अभी। अ, आपका जो एक पूरा मानस डिवीजन है, एक अलग पूरा डिवीजन है,
जो आई थिंक इंडिया में एक ओनली वन है आयुर्वेद के साथ जो है सर। तो सर थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं सर, कि लोगों को आप तक पहुंचना हो, वहाँ पे थेरेपी के लिए आना हो, तो कौन कौन से रोगों का इलाज होता है जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, और किस किस तरह की थेरेपीज वहाँ पे होती है सर? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन लक्ष्मण जी आपका। क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसलिए है कि अलग सेंटर इसलिए कि बहुत से लोग इंडिविजुअली अलर्ट करते हैं, लेकिन कोई जो मानसिक विकार होते हैं किसी एक बीमारी की वजह से नहीं होते हैं। बीमारी के अलावा बहुत से अलग कंपोनेंट होते हैं, कुछ सोशल कंपोनेंट होते हैं, कुछ पर्सनल कंपोनेंट होते हैं, कुछ फाइनेंशियल कंपोनेंट रहते हैं, कोई इकोनॉमिक कंपोनेंट हो सकते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं, कंपोनेंट हो सकते हैं। और मन जो है चूंकि एक तरह का और बहुत सी सरकमस्टांसेस होते हैं सकती हैं, जैसे किस किस कौन सी चीजें इन्वॉल्व है उस पर बेस करके हम लोग वो कर देते हैं। तो इसलिए ओवरऑल जो माइंड का ट्रीटमेंट होता है केवल दवाओं से संभव नहीं है, केवल मेडिसिन से संभव नहीं है, और केवल स्पेशली केवल साइकोथेरेपी संभव, केवल पूरा होलिस्टिक एक मेथड होना चाहिए मन को कंट्रोल करने। तो हम लोग डील करते हैं, तो हम लोगों का एक सेंटर है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, इसे कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट का कोशिश करते हैं हम लोग। कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट में हम लोग एक तो कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, कुछ आयुर्वेदिक औषधियां उनके द्वारा चिकित्सा करते हैं, कुछ योगिक प्रोसीजर्स उनके द्वारा करते हैं, प्लस साइकोथेरेपी जैसे आपने कहा साइकोथेरेपी उसके कॉम्बिनेशन से ट्रीटमेंट करते हैं। साइकोथेरेपी में आप जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज करते हैं, आप लोग EMDR थेरेपी यूज करते हैं, या बहुत से अलग तरह के थेरेपी यूज करते हैं, सपोर्टिव साइकोथेरेपी यूज करते हैं, ये सारा चीज करके तो उसे पूरे कॉम्बिनेशन से हम लोग यूज करते हैं। इसलिए एक जो है एक होलिस्टिक सेंटर है हम लोगों का, होलिस्टिक मैनेजमेंट के लिए सेंटर है, जो कि स्ट्रेस के लिए है, जी स्ट्रेस के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए। तो उसमें कुछ जो है कुछ जो इक्विपमेंट्स हैं, ये बायोफीडबैक इक्विपमेंट, कंप्यूटराइज बायोफीडबैक इक्विपमेंट है, बायोफीडबैक के इंस्ट्रूमेंट है, और कुछ जो है हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो है डिप्रेशन के लिए सिमुलेशन जो है एक इक्विपमेंट है उसके द्वारा करते हैं। प्लस जो है और भी बहुत से इक्विपमेंट है जो कि इंडिविजुअल चीजों का GSR है, गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, जिससे स्ट्रेस मेजर करते हैं, स्ट्रेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं रिलैक्सेशन के बाद, उसको गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स से मेजर करते हैं। तो और भी इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों में ट्रीटमेंट के लिए काम आते हैं। इसके अलावा योगिक प्रोसीजर्स हैं, और इसके अलावा साइकोथेरेपी है। तो हम लोग मेडिसिन अवेलेबल है, अगर लेकिन वहाँ साइकोथेरेपी प्रॉपरली बहुत ज्यादा कोलेबरेट नहीं करते हैं, यूज लेते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जबकि इंपॉर्टेंस साइकोथेरेपी इक्वली इंपॉर्टेंट है। साइकोथेरेपी योगिक प्रोसीजर्स या रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स और जो है जो डिफरेंट इक्विपमेंट, ये सारा लेके हम लोग पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट करते हैं। इसलिए ये हम लोगों की यूनिकनेस है कि हम लोग जो है आयुर्वेद में जो है आयुर्वेद सेक्शन में जो है मानस चिकित्सा यूनिट है, उसमें हम लोग ये सारी चिकित्साएं उपलब्ध कराते हैं और सारे प्रोसीजर्स। तो ये इक्विपमेंट है, अगर कोई उसका लाभ लेना चाहे तो उसको ले सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि मानस जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं किसी एक वजह से नहीं होते हैं, तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, सारे कंपोनेंट को इवेल्युएट करना वो इंपॉर्टेंट होता है। और तब तक जब तक नहीं किया जाएगा तब तक उसके ओरिजिनली वी कैन नॉट ट्रीट द रूट काज ऑफ द डिजीज। रूट काज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटिंग रूट काज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर, जितना दवाइयों का रोल है उतना ही ज्यादा थेरेपीज का भी रोल है, और तभी शायद होलिस्टिक अप्रोच में चीजें ठीक की जा सकती हैं, क्योंकि सर अपने पास कंप्यूटराइज बायो फीडबैक भी है, जो आई थिंक जो सारे कंपोनेंट्स को एक साथ वो मैप करता है। यस यस यस। वी हैव अ फ्यूजन फ्लिकर आल्सो सर। तो ये सारे एडवांस और आयुर्वेदा के जितने भी टूल्स टेक्निक्स हैं आपको मिल जाएंगे आयुर्वेद के मानस रोग डिपार्टमेंट में। सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा सर, जो हमारे आज की युवा पीढ़ी है, हेलो सर आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज के जो युवा पीढ़ी है हमारी, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैनिक करने लगी है सिचुएशन की वजह से, जो अभी एक कोविड-19 का जो एक इशू चल रहा है सर, जिसमें उनको एग्जाम्स हैं, उसके अलावा फैमिली एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावा ड्रग एडिक्शन का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आया है। लोग कई बार अपने प्रॉब्लम को सबसाइड करने के लिए ड्रग्स का सहारा लेते हैं। तो ऐसे में सर आयुर्वेदा का क्या रोल हो सकता है सर, या ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो लोग
किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं अपने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या जो भी मेंटल रिलेटेड इलनेस है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है सर? उसमें आयुर्वेद का क्या रोल हो सकता है सर? हम लोग का ये हमने देखा है अपने उसमें स्टडी में या अपने वो क्लिनिकल वर्क में कि लोग जो है अपनी प्रॉब्लम जब कुछ होती है तो पहले तो लोग दूसरे को सलाह कर, आजकल हम लोग सोशल कम हो गए हैं तो सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते हैं, लेकिन पर्सनल पर्सनल रिलेशंस कम 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 हो गए हैं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है जब जी। कोई भी प्रॉब्लम होती है, जब कोई प्रॉब्लम होती है हमारे साथ, तो हम किससे शेयर करें वो हमारे प्रॉब्लम। जो भी पेशेंट है, जो भी वर्चुअल फ्रेंड्स हैं हमारे, वो सोशल फेसबुक पर हैं। जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जो भी सोसाइटी है, जो भी हमारे कनेक्शन है, वो सब वर्चुअल है। वर्चुअल कनेक्शन से हट के हम लोगों को अपने कुछ रियल फ्रेंड्स बनाना चाहिए, रियल हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनसे बात करना चाहिए। आजकल के देखिए, आजकल की पीढ़ियों में हम लोग को देखा है कि लोग पर्सनल कनेक्शन बनाना कम चाहते हैं, और पर्सनल बात करना, पर्सनल टॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करने के लिए होता है। जब भी स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, अपनी प्रॉब्लम किसी को बता सके, शेयर करने, तो बहुत सी समस्याएं उसी साल हो जाती है। जबकि हम साइकोथेरेपिस्ट बिल्कुल। के पास जाएंगे या साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे या किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएंगे, उससे पहले बहुत सी चीजें जो है, कभी हम लोग पूरा पहले भी समस्याएं होती थी, पहले समस्याएं कहीं आज से ज्यादा थी, लेकिन फिर भी लोग अपने आप को मालूम कर लेते हैं। लेकिन वो लोग होते थे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को हम लोग को प्रमोट करना चाहिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो ड्रग्स का इशू उठाया, ड्रग्स का भी इसीलिए जबकि फ्रस्ट्रेशन होता है और ये होता है, और हमारे साथ कोई साथ नहीं होता, ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, निहायत अकेले हैं। और उसमें हम लोग को कभी कभी जो है वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से ड्रग लेते हैं कुछ लोग, और कुछ जो है केवल जस्ट बिकम किसी इंजॉयमेंट, किसी प्रशिक्षण के लिए, यूफोरिक स्टेट में जाने के लिए ड्रग लेते हैं, क्योंकि उनके वो लोग हैं। ये चीजें जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रग्स जो है पूरी हमारी लाइफ को ही वो बर्बाद कर देता, डिटोरेट कर देता है, पूरी लाइफ की थिंकिंग। तो वो बहुत ही इतना नुकसान है कि एक बार ड्रग ले लिया तो फिर वो दोबारा छोड़ना उसको मुश्किल होता है। ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, लेकिन ड्रग डी एडिक्शन सेंटर से भी आने के बाद भी बहुत से लोग उसको नहीं छोड़ पाते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि तो इसलिए ड्रग्स के जो है, जो भी ले जाते हैं, जो जब भी फ्रस्ट्रेशन हो, प्रॉब्लम्स हो, जब भी आप फील करें निहायत अकेले फील करें, तो युवा पीढ़ी को किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए, न कि ड्रग्स का सहारा लेना चाहिए, न कि किसी और का कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व किया सकता है। दुनिया में कोई सी प्रॉब्लम नहीं जो सॉल्व ना किया सके, क्योंकि आजकल अभी जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने पेरेंट्स से ही बात करना कम चाहते हैं, पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते हैं। पेरेंट ने केवल, और पेरेंट भी बहुत कम बात करना चाहिए। पेरेंट ने सोचिए कि सारा कुछ फैसिलिटी दे दिया हमने कि अपने बच्चे को पढ़ने के लिए सारी फैसिलिटी दे दी है, पैसे दे दिए, सब कुछ दे दिया, उसी को समझते हैं कि सब कुछ दे दिया हमने। वो नहीं होना चाहिए। पेरेंट कम्युनिकेशन कम हो गया है, पेरेंट्स से भी कम हो गया, रिलेटिव से कम हो गया है, फ्रेंड्स, हमारे रियल फ्रेंड्स कम हो गए हैं। ये सारी चीजें जो है लेके हमको इस तरह के नशे की ओर जो है ढकेलती हैं, और फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन और ले आती हैं। जैसा कि हमने देखा अभी बॉलीवुड में जो है, हमारे यहाँ बहुत से पूरी पूरी जमात चली आ रही है, जब इंक्वायरी हो रही है, सीबीआई और एनसीबी की इंक्वायरी चल रही है, कितने लोग उससे जुड़ रहे हैं, और पूरी लाइफ को, इसलिए हमारी युवा पीढ़ी जो सबसे यंग, सबसे फर्टाइल पीरियड होता है पूरी लाइफ का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जबकि हम देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, अपने कैरियर के लिए कुछ कर सकते हैं। उस समय अगर हम ड्रग्स की तरफ भागेंगे तो वो सब गलत होगा। उसके पहले इस तरह के कोई प्रोसीजर्स होते हैं, तो इस तरह की कोई अगर समस्या आती है तो आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बिना संकोच सहन करें, कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि लोग अपने आप इसको मेंटल हेल्थ से सफर करने को उसको उसको स्टिग्मा समझते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, उसको क्लियर करना जरूरी है, इसमें अवेयरनेस लेना जरूरी है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम किसी के साथ हो सकती है और सभी के साथ होती है। ठीक है, बहुत बड़े स्टार्स हुए हैं, इवन बहुत से लोगों ने खुद ही एक्सेप्ट किया है। दीपिका पादुकोण ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि शी वाज सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिप्रेशन, उससे बाहर आए वो लोग, और फिर अपना अपना काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। से बहुत से लोग हैं जो कि किया सकता है, लेकिन प्रॉपरली समय पर उनसे एडवाइस लेना वो इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आप फ्रस्ट्रेशन हो, जब भी समस्या हो, जब भी एंग्जाइटी हो, एंक्सियस हो, जब भी कोई उलझन हो, जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो, ये समझ में ना आए कि क्या करना चाहिए, तो आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से सहारा लीजिए, ना कि ड्रग्स ड्रग्स या उनके पीछे जाइए। क्योंकि एक बार ड्रग्स के चंगुल में चले गए तो पूरी लाइफ आपने गिरवी रख दी अपनी, और फिर आप किसी से उसे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, असंभव होता है। उसमें आयुर्वेद के द्वारा हम लोग केवल थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद से भी पूरी तरह से जो है हम लोग ड्रग्स के बाहर निकालना, अगर सीवियर ड्रग में इन्वॉल्वमेंट है तो बहुत मुश्किल मुश्किल काम हमने देखा है, ये सबसे मुश्किल काम होता है। तो इसलिए अपने आप को पहले से कंट्रोल, पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसके अनुसार हम लोग प्रिवेंशन ज्यादा करना चाहिए, इस तरह की चीजों।
जी सर। सर एक और सवाल है। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ। एक सवाल ये भी है कि क्या सर लोग अक्सर ये मानते हैं कि मेंटल हेल्थ की जो दवाइयाँ होती हैं वो आदत बना देती हैं, मतलब उसका हैबिट हो जाता है। बहुत सारी चीजें मिसकंसेप्शन रहता है मेंटल हेल्थ के मेडिसिन को लेकर के। जो तो क्या सर आयुर्वेद की भी मेडिसिन वो क्या नहीं साइड इफेक्ट नहीं, करती हैं क्या, मतलब उनका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मिसकॉन्सेप्शन है कि मॉडर्न मेडिसिन का भी जो है थोड़ा साइड इफेक्ट होता है, लेकिन ये कहना कि वो लाइफ लॉन्ग चलती है, ऐसी कुछ ऐसे नहीं है। सभी दवाओं का कोर्स होता है एक, और पेशेंट का रिस्पांस हम लोग देखते हैं, पेशेंट का रिस्पांस किस तरह से है। फिर मॉडर्न मेडिसिन में भी रिस्पांस देखते हैं, रिस्पांस देख के पेशेंट को दवाइयाँ टैपर की जाती हैं, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, और वो भी होती हैं, उसके बाद पेशेंट ठीक भी आते हैं। इसलिए ये मिसकॉन्सेप्शन करना कि हमको इस तरह की प्रॉब्लम हो गई, दवा लेंगे तो लगातार लेते रहेंगे, ये बिल्कुल एक मिथ्या है, और दिस इज एक मिसकॉन्सेप्शन है। आयुर्वेद में जैसा बताया, आयुर्वेद की दवाइयाँ जो मेंटल मेद रसायनों का कॉन्सेप्ट बताया हमने, मेद रसायन औषधियाँ जो है वो प्रिवेंटिव भी है, प्रमोटिव भी है, और क्यूरेटिव भी है। तीनों तो तीनों चूंकि एक साथ काम चल रहा है, इसलिए वो जो है साइड इफेक्ट तो बिल्कुल होता ही नहीं है। पेशेंट अपने आप में वेल भी महसूस करता है। नॉर्मल पेशेंट भी लेता रहे तो अपने आप को अच्छा महसूस करता है, और फीलिंग ऑफ वेल बींग होती है। उसको एंग्जाइटी, एंग्जियसनेस, और पेशेंट जो है अपने आप में उसको लगता है कि आई एम फीलिंग वेल मेंटली एज वेल एज side effects as such. If we are taking in a proper dose, normal dose, and if it is prescribed by a knowledgeable consultant, knowledgeable consultant, so there is no question of और इसलिए ये सोचना नहीं चाहिए कहीं, चाहे मॉडर्न मेडिसिन में भी जाते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि जो दवाइयाँ लेंगे तो लाइफ लॉन्ग लेंगे या कोई देख लेगा, क्योंकि मेंटली हेल्दी होना जरूरी है। कि मेंटली हेल्थ नहीं है तो पूरी पूरी फिजिकल हेल्थ हमारी बर्बाद हो सकती है। कि फिजिकल, क्योंकि पूरी बॉडी को कंट्रोल माइंड करता है, हमारे थॉट्स जो है पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। बॉडी माइंड को कंट्रोल उतना नहीं करता जितना माइंड कंट्रोल करता है। इसलिए माइंड को जो है अपने ठीक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं। ये हमारी सोसाइटी में भी है, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस हमको उतना नहीं है मेंटल हेल्थ का। अवेयरनेस फैलाने की बहुत जरूरत है। काउंसलिंग हेल्थ सर्विस, काउंसलिंग सर्विसेज आईआईटी बीएचयू की तरफ से मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़ी प्रयास की जरूरत है समाज में और राष्ट्र में। स्पेशली जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, दे आर ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ इंटेलेक्ट। तो जो इंटेलेक्चुअल्स हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे आईआईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो know about that this thing is so much important that even whenever they suffer they should contact the healthcare professionals. Okay. Yes, लक्ष्मण जी। हाँ सर आपका गला ठीक नहीं है फिर भी सर आप हाँ सर आखिरी के 2 क्वेश्चंस हाँ, बस इम्पोर्टेंट। हाँ, गला बताइए ठीक है बताइए अभी? बताइए। नहीं तो हम डिसकंटिन्यू कर देंगे सर, नहीं फिर कभी करेंगे। नहीं, हाँ थोड़ा सा सर आपने बात जैसे कर बात सकते हैं, की बोल कि सकते हैं। जी जी सर, एक चीज बहुत अहम सवाल है ये आज के लोग को लगता है शायद ये साइड इफेक्ट सोच के ही वो लोग नहीं आते डॉक्टर तक। आपने कहा कि कई लोगों को लाइफ लॉन्ग दवा खानी पड़ेगी। तो सर जो स्टिग्मा है लोगों को मेडिसिन को लेकर के, सर उन लोगों से आप क्या कहेंगे जो खासकर किसी प्री कंसीव नोशन लेकर के वो परेशान रहते हैं कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तमाम तरह की भ्रांतियां हैं। तो सर उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिनके दिमाग में डाउट है मेडिसिन कराने को लेकर, ये कराने को डाउट लेकर के? डाउट 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 बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन जो है अभी अवेलेबल है, अभी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे एडवांसमेंट भी है मेडिसिन में। आज से जो 20 साल पहले जो मेडिसिन अवेलेबल, आजकल बहुत सारी डेवलपमेंटल जो मेडिसिन अवेलेबल है, जो कि डेवलप्ड हो गई है, जिनको कम समय लेना पड़ता है, जिनके साइड इफेक्ट भी बहुत कम है। लेकिन अगर मेडिसिन नहीं लेंगे तो आप बहुत ज्यादा सफर करेंगे लाइफ में, क्योंकि मेडिसिन लेंगे तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो भी होता नहीं है काफी। जैसे नई मेडिसिन डेवलप हो रही है जिनमें साइड इफेक्ट बहुत कम है, उसका इफेक्ट ज्यादा है, कम मात्रा में लेनी पड़ती है। ऐसे बहुत से डेवलपमेंट हुए हैं, जो एंटी डिप्रेशन दवाइयां हैं, एंटी एंग्जाइटी दवाइयां हैं, और एंटी साइकोटिक दवाइयां हैं। सब बहुत से डेवलपमेंट हो रहा है साइंस में, फार्माकोलॉजी में, और फार्मास्यूटिक्स में डेवलपमेंट हो रहे हैं। इसलिए ये सोचना बिल्कुल कि नहीं कि हम इसलिए कभी भी जो परेशानी हो उसको मेंटल हेल्थ की दवाइयां लेने में बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि
जाएंगे कुछ समय बाद और हम मेंटली हेल्दी हो जाएंगे तो हम बहुत प्रोडक्टिव होंगे अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने दुनिया, अपने 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 राष्ट्र के लिए, अपने कंट्री के लिए। प्रोडक्टिविटी जो है हमारी तभी बढ़ेगी जब हम मेंटली हेल्दी होंगे। इसलिए चाहे आप फार्माकोलॉजी में हो चाहे किसी फील्ड में काम कर रहे हो, हम अपने मेंटली हेल्दी होना जरूरी है। उसके लिए जो जब जरूरत होती है तो मेडिसिन जो है लेना बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए उसमें। जो 20-25 साल पहले कंडीशन थी वैसी दवाइयां, जब हम लोग स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, उस समय ऐसी कंडीशन थी जो दवाइयां लेनी पड़ती थी, काफी लॉन्ग डोज में लेनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट था। आजकल दवाइयां बहुत सी एडवांस डेवलप हो गई हैं, जिनका साइड इफेक्ट बहुत कम कम है और वो कुछ समय लेना पड़ता है और इफेक्ट जो है अच्छी प्रोड्यूस होती है। ये तो हम लोग अपने आप डे टू डे बेसिस में देखते हैं। इसलिए ये बिल्कुल संकोच लेना चाहिए, कहीं भी बॉदर नहीं करना चाहिए ये कभी भी। बिल्कुल ये लोगों को संदेश पहुंचाना आप लोगों का काम है, और जो अभी जो सुन रहे हैं लाइव, उनके लिए हमारा ये बिल्कुल ये क्लियर कट मैसेज है कि अगर आप सफर कर रहे हैं तो आप रेगुलरली कंसल्ट कीजिए, कुछ ना कुछ मेडिसिन लीजिए। क्योंकि अब नहीं सफर करते हैं, नहीं अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा लाइफ में सफर करेंगे, हर फील्ड में, अपने वर्किंग में, अपने ऑक्यूपेशन में, अपने सोशल लाइफ में, हर जगह आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये होता है। वो आते हैं बहुत ज्यादा सफर करने बाद आते हैं, लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज गुजर जाता है जो कि बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट में गुजर जाता है। इसलिए वो वैसा कोई कोई प्री कंसीव नोशन ना रखे और दे शुड टेक द मेडिकेशंस विदाउट एनी हेजिटेशन। सर एक एक लास्ट, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं, दोनों के लिए ये टॉक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। रिचा मैम ने लिखा भी है, डॉक्टर रिचा यादव मैम ने, कि दिस टॉक इज ग्रेट वर्थ फॉर एवरीवन इन द सोसाइटी हैविंग सो मेनी डाउट्स रिगार्डिंग मेंटल इलनेस। इंटरेस्टिंग टॉक बाय यू सर। आपको सर लिखा है मैम ने। सर थैंक यू थैंक यू। हाँ सर, एक सवाल था सर कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे, मेंटल हेल्थ रिगार्डिंग कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? क्योंकि स्टूडेंट्स एक बड़ा मतलब बड़े लेवल पे सफर कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास, खासकर आईटी स्टूडेंट्स के लिए जिनकी जॉब लगनी थी वो स्टॉप हो गई है, कई लोगों का इंटर्नशिप लगना था वो भी सर रुक गया है। तो सर पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होपफुल थे कि भाई ठीक है मेरा बेटा गया है, बहुत बच्चों के साथ बैंक के या कहीं से पैसा लेकर के अरेंज करके वो एक उम्मीद बांधे हुए थे कि ठीक है वे कहीं जॉब ज्वाइन करेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे जो बिल्कुल अचानक उनके सारे जो फ्यूचर प्लान्स थे, जो उनका जॉब का था, वो लेटर भी अभी स्टॉप हो गया है, उनका था वो भी स्टॉप हो गया है। ऐसे में आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे सर? देखिए लगता है आज के जो आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड, बहुत ही पोटेंशियल है उनके अंतर्गत। और और इसलिए उनको जो है सबसे बड़ा मैसेज ये देना चाहते हैं कि इनको दे शुड नॉट लूज होप इन एनी वे। द बेस्ट थिंग इन द लाइफ, दिस इज नॉट फॉर दिस कोविड कंडीशन, नॉट फॉर दिस प्लेसमेंट एंड अदर रिलेटेड थिंग, बट फॉर एवरीथिंग एल्स इन द लाइफ, everything they should not lose hope. So because if we lose hope, we lose everything, because if it is the hope which tickles together, which takes our life on and this march past forward past is there. Because hope की जब होता है, जब हमारे पास होप होता है तभी हम आगे बढ़ते हैं, करते हैं। इसलिए उनको समझना चाहिए कुछ समय के फेज है, दिस phase is will be for certain period and after that it will be over. So don't be overwhelmed by the conditions, and you should and they should just wait for the situation to become normal. I hope it will become normal very easily. So it's a matter of few months, and they should always because I have just seen today there's a many of the IT companies, they are still going on and they are getting profits also. I learned from today's Times of India that the Infosys company, which in the country, has got an advantage, and the 1,800 crores it has got the betterment in these COVID conditions also. It's not that the things has become stopped, it has become slowed down, but profits of this much amount they are going to continue. So it's not that there is the option is always there, and your internship might be delayed, but doesn't mean that your life has stopped. You go on doing something very stock of your time,
and always activity, something creative you can do. You have got the potential mind into the country between for a few months. Then you can yourself making your mind mentally and body. So you do some kind of exercises. You involve into some kind of exercises, some mental exercises, some yogic pranayam, yogic procedures. You involve yourself. You involve in some creative activities, and positive thing is the hallmark of any kind of mental health. So positive thing, you think always positively, that everything become all right is something. Always be positive, and that everything will and you will definitely succeed, because this is just a few months. Slow down, or the slow down into the economy or something. So they should be always positive. This should be always hopeful. This is my message to the all the students and the parents, and they should utilize the time by positive thinking, by learning more and more newer methods, some innovative ideas regarding the mental health, physical health, regarding the certain techniques which they can learn online. So they should involve them in themselves. So don't, there's nothing to become hopeless or something very hopeless. So I will just, with this message, I think everybody become positive with in their work and Definitely, sir, definitely. procedure. Okay. सर वन लास्ट क्वेश्चन सर, किसी ने पूछा है कि आपसे मिलना हो, मतलब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर जो आपसे कंसल्ट करना हो तो कहाँ आपसे मिला जा सकता है और ये कितना कॉन्फिडेंशियल होता है सर? It depends upon हमको मिला, आई कैन इन द मेंटल हेल्थ डिवीजन, मानस चिकित्सा यूनिट है आयुर्वेद विभाग में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग में मानस चिकित्सा यूनिट है। वहाँ हम लोग मिलते हैं, डेली मिलते हैं, लेकिन ओपीडी डेज हमारा का केवल वेडनेसडे फ्राइडे रहता, 2 दिन रहता है। 23 नंबर रूम में, रूम नंबर 23 इन आयुर्वेद विभाग में, वहाँ मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। और कॉन्फिडेंशियल जहाँ तक होता है, डिपेंड्स अपॉन पहले पेशेंट हम लोग बात करते हैं, अगर लगता है कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल कोई चीज है जो राय चाहते हैं, then we talk separately. Then it's absolutely confidential. If you think that patient is want to keep his information very confidential, it doesn't want to disclose anything. So then, but something which this is there, many of the patients, they can talk their problems in openly in the OPD itself. So then we can talk in the OPD. If the patient is want something to talk in very confidential, then we ask them to give the appointment, and then they come to the our chambers, individual chambers, at the appointment time. They can meet anybody, and for the students of BHU, we are available all the time around the clock, and we will be always helping to improve their mental health, because if they improve the mental health, they automatically they will be more productive to the our university, our society, to their families and to their careers. So we are very promote to and always submission to looking forward to help you in each and every way possible. थैंक यू सो मच सर। रूम नंबर 23 में आप लोग मिल सकते हैं, और उसके अलावा डिवीजन में वहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच में होता है, वहाँ मेडिसिन होते हैं वहाँ पे। उसके अलावा आपको साइकोथेरेपीज के अलग अलग विधियों के द्वारा आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। अप्रोच कर सकते हैं एनी टाइम, इट्स हाईली कॉन्फिडेंशियल एक्सेप्ट संडे और बाकी के जो नेशनल हॉलीडेज हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय दिया हमारे स्टूडेंट काउंसिल। IIT BHU की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपका गला ठीक नहीं था, फिर भी आपने इतना बेशकीमती समय हम सबको आपने दिया, इसके लिए हम लोग बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर, सारे स्टूडेंट्स की तरफ से, स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से सर। धन्यवाद सर। Thank you Lakshman. Thank you the coordinators, and thank you the student counseling services for giving me opportunity to interact with you. I'm very happy to interact with you, but though I'm being some problem with my throat, but still I enjoyed the entire session, and I thank the organizers, all the viewers who were there to listen me, and if they have got through, I will be much happy to there. I will always happy to help them in each and every way possible. So thank you all of you. Thank you all the viewers. थैंक यू सो मच सर। आगे भी हम आप लोग का आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, हमारे स्टूडेंट्स को मिलता है सर। इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं सर।
सबका बहुत बहुत शुक्रिया you. हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। आज हम बात कर रहे थे प्रोफेसर जे एस त्रिपाठी सर से, जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और सर को मोर देन 30 इयर्स से भी ज्यादा का सर को अनुभव है मेंटल हेल्थ के फील्ड में। थैंक यू सर, आज हमें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। Thank you. सबको मेरा नमस्कार।